नमस्कार दोस्तों। मैं हूं एडवोकेट रिंकू डाबरा और आप मेरे साथ देख रहे हैं डाबरा लीगल एंड एचआर सपोर्ट। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के बारे में। तो जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 है उसके बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 consolidates and amends the laws relating to the trade union, conditions of the employment in industrial establishment or undertaking, investigation and settlement of industrial disputes. The code combines and simplifies three central labor laws. Next point है Industrial Relation Code 2020 introduced more conditions for worker to strike alongside an increase in the threshold relating to layoff, retrenchment in industrial establishment having 300 workers from 100 workers to provide more flexibility to employer for hiring and firing workers without government permission. Next point है the proposed legislation provide for a broader framework to protect the right of worker to form union to minimize the friction between employer and worker and to provide provisions for investigation and settlement of industrial disputes. Next point है Industrial Relation Code amends the definition of strike. It includes now if over 50% of companies worker take concerted casual leave, it will be treated as strike. Condition है however worker cannot go on strike without a 14 days or not exceeding 60 days notice. This bill is passed on 22nd 2020 in the Lok Sabha and in Rajya Sabha. This bill passed on 23rd September 2020 and it was assented by the president on 28th September 2020. It means this bill was introduced in September first in the Lok Sabha, then Rajya Sabha, and then assented by the president, and it was converted into the act itself in the 2020. But the date of commencing into force is yet to be notified. But we, if we go for the some news or we try to Google it, then it shows us that the government may notify to implement these new acts from the 1st of July 2022. So the Industrial Relation Code 2020 or we can say IR Act 2020 is enforced and these three old acts are repealed and these acts are Trade Union Act 1926, Industrial Employment Standing Order Act 1946 and the Industrial Dispute Act 1947. Okay, now we will go with the history of this act. Both the houses, that is Lok Sabha and Rajya Sabha, passed the bill on the itself in the September 2020 and it was signed by the president within the same month, that is September, and this bill is converted into the act. As already discussed in the last slide, that this new code is formed by the consolidating the three old acts, and these acts are the Trade Union Act 1926, second is Industrial Employment Standing Order Act 1946, and the third old act is Industrial Dispute Act 1947. And the earlier there was 88 section in all these three acts, but now they are converted to the 108 sections, and these 108 sections are divided into the four chapters. And the first chapter of this act, that is the Industrial Relation Code 2020, it covers all the definitions related to these acts. Okay, so first we will go with the changes related to the definition, means what are the changes in the definition, because if we are going for the understanding or for anything into the code, then we need to understand what does worker mean, employer mean, fixed term employment means what does it means, the violation हुआ किस चीज का है, तो पहले हम उसका बेस जानना जरूरी है. तो so first we go with the definition of worker. It also includes working journalist, newspaper and sales promotional employees as per the section 2F as included in the code on wages. It means that the same definition of worker is given in the Code on Wages Act 2019 as we have already discussed in the previous video.
if you are not gone through that video, you can go to the our channel and you can go to the playlist that is new labor laws, and you can watch there the old video that is made on the Code on Wages Act 2019. Next definition is related to the worker. It means definition includes all the worker, either they belongs to the organized or unorganized. Even the worker belongs to the contractor, they comes under the term of worker. Employee means employee definition includes now the supervisor as well as the managerial staff. Now fourth point comes to the employer. Who will be the employer? Now the occupier and the manager means a person who is designated as per the Factory Act 1948 under the section 71F. If and who is designated as the occupier and the manager as per as the section 71F of the Factory Act, it should be considered as the employer. In case of the factories, in other establishments, authorized person who is authorized, who is holding the power to monitor or to take the work, it considered as the employer. And in case of deemed employer means कि अगर किसी employer owner की death हो गई है तो his or her legal representative should be considered as the employer, and contractor is also considered in the term of employer. एक जो न्यू टर्म आई है दैट इज फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट. What does it mean? Now, fixed term employment is eligible for all the statutory benefits. Even period of employment does not extend or qualifying period of the employment required in any state. इसकी कंडीशंस क्या है? अब फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की मींस की वर्किंग आवर, वेजेज, अलाउंसेज एंड अदर बेनिफिट्स should be equal to the permanent worker as per the nature of the work. Gratuity is only applicable if the contract period is minimum for one period. It means ki if an employee is employed on the contract basis and his contract is for one or more year, then he is eligible for the gratuity. Now many confusions are arises after this act when it comes when this bill is formed and turned into the act, and this term is mentioned in that act ki gratuity is applicable for the contract period of 1 year as well. So people started thinking कि कहीं gratuity की जो एलिजिबिलिटी थी उसका पीरियड तो चेंज नहीं हो गया, 5 साल से 1 साल तो नहीं हो गया. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ग्रेचुटी का जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है वो कम हो गया है, वो 5 साल ही है अभी भी एज पर एज ग्रेचुटी एक्ट जो है. ये केवल जो है उनके लिए एप्लीकेबल हो गई है कि जो एम्प्लॉय जो है फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट पे होंगे उनके लिए ग्रेचुटी 1 साल में ही एप्लीकेबल हो जाएगी. जो अदर परमानेंट एम्प्लॉय वगैरह है उनके लिए सेम कंडीशन है जो पहले थी. फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉय कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू परमानेंट एम्प्लॉय इन बिटवीन द एग्रीमेंट. यानी कि 2 साल का अगर एग्रीमेंट है किया है किसी एम्प्लॉय के साथ और एम्प्लॉय चाहता है 6 महीने के बाद ही उसे परमानेंट कर दिया जाए, तो ऐसा नहीं कर सकते जब तक कि वो एग्रीमेंट कंप्लीट नहीं होता है. ले ऑफ डेफिनेशन इज आल्सो इंक्लूडेड इन दिस एक्ट. Exclusion from the retrenchment definition for the termination of employment of worker on the ground of continuous health issues also included in this act. Retrenchment definition it especially excludes the termination of service of worker as a result of completion of the fixed term employment. यानी कि अगर किसी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, यानी कि किसी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि उसको एक पर्टिकुलर पीरियड प्रोजेक्ट के तहत रखा गया है, यानी कि 2 साल के लिए रखा जा रहा है और उसका वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है और फिर कंटिन्यू नहीं होता एम्प्लॉयमेंट, तो उसको रिट्रेचमेंट में नहीं कंसीडर किया जाएगा. स्ट्राइक कंसंट्रेटेड कैजुअल स्ट्राइक के अंदर जो इंक्लूड हुआ है कंसंट्रेटेड कैजुअल लीव गिवन टू द 50% और मोर एम्प्लॉयज ऑन ए डे इज कंसीडर्ड एज द स्ट्राइक. which definition is same as we have already covered in the last video, that is on the Code on Wages Act 2019. Ceiling limit for excluding the supervisor is changed from 15K to 18K. Earlier the supervisors are not come under the workers definition who are getting this salary up to or more than the 15K. Now the supervisor who are getting the salary less than the 18K, they are included under the definition of the worker. Those are getting more than 18K, they are excluded from the definition of worker. Now there will not be any labor code. Now there should not be labor code. Jurisdiction matter has been dropped, which are as per the second and third schedule of the Industrial Act. Excluded from the term of industry, यानी कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री के अंदर नहीं आएगी. इंस्टीट्यूशन
owned or managed by the organization wholly or partially, engaged in any charitable, social or philanthropic services. Second condition है any activity of appropriate government related to the supervision function of the appropriate government, including all the activities carried on by the department of the central government dealing with the defense research, atomic energy and space. Third condition है any domestic service related to the home servant, driver, cleaning condition, cleaning manpower, all these things. Fourth point है any other activity as may be notified by the central government, means कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिस देके एक्सक्लूड कर सकती है और अदर ऑर्गेनाइजेशंस को जो इंडस्ट्री में इंक्लूड नहीं होंगी. चेंजेस इन द ग्रीवेंस रेड्रेसल कमेटी, वी विल pronounce it now in the short form, that is GRC. So applicability is same as it was earlier for those establishment having 20 or more employees. Limit for maximum number of employees is changed from 6 to 10. Now the maximum number of employees can be in the grievance redressal committee is 10. Earlier it was 6 की पहले केवल मैक्सिमम 6 ही लोग हो सकते थे ग्रीवेंस रेड्रेसल कमेटी में, अब जो है 10 लोग हो सकते हैं. रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वुमेन वर्कर इन जीआरसी बिकेम द मैंडेटरी. पहले ये मैंडेटरी नहीं था कि फीमेल वर्कर होना बहुत जरूरी होगा कमेटी में, बट जैसे ये एक्ट एप्लीकेबिलिटी में आ जाएगा उस दिन से जो है फीमेल वर्कर का भी कमेटी में होना कंपलसरी हो जाएगा. अब कितनी होंगी, वो होगी एज पर द प्रपोर्शन और टू द टोटल नंबर ऑफ वुमेन एम्प्लॉयड इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जितने परसेंट वर्कर फीमेल वर्कर्स होंगी एज कम्पेयर टू टोटल वर्कर, उतने ही जो है परसेंटेज जो है कमेटी में मेंबर होंगी फीमेल वर्कर. सपोज करो कि 40% अगर फीमेल काम करे किसी कंपनी में, 60% मेल है, तो उसमें 4 मेंबर जो है फीमेल होंगी ग्रीवेंस कमेटी में. The right of raising the individual grievance is changed. The grievance settlement authority is to be set up in establishment employing minimum 50 employees. Next, the time limit for raising the grievance to GRC is changed 1 year instead of 3 years. Earlier it was the time limit for 3 years. Now it's changed to the 1 year for raising the grievance to the GRC. The dispute due to dismissal, discharge, retrenchment or termination will be industrial dispute, even where there is no collective dispute. It now come to under the GRC chapter. Now worker can take his dispute or grievance to the tribunal after the expiry of 45 days from the date of application to the conciliation. In case of individual dispute which is arising due to the discharge, dismissal, retrenchment or termination of service, can file within 2 years. As earlier there was no limit as per the Industrial Dispute Act. First provision to section 4I of Trade Union Act 1926 mandate for the registration of trade union at least 10% of total employees or 100 employees, whichever be the less engaged or employed in the organization. This provision is same in the section of 6/2 of IR code. Means कि जो मैंडेट था रजिस्ट्रेशन के लिए वो सेम है, बस सेक्शन चेंज हो गए. पहले सेक्शन 41I में आता था इस पर ट्रेड यूनियन एक्ट, अब ये IR कोड के अकॉर्डिंग सेक्शन 6/2 में आएगा. मिनिमम लिमिट ऑफ एम्प्लॉयज इज अल्टर्ड, यानी कि जो पहले मिनिमम लिमिट थी कि 7 मेंबर होने बहुत जरूरी है यूनियन फॉर्म करने के लिए, अब वो चेंज कर दिया गया है. एज पर दी IR कोड मिनिमम 10% और 100 मेंबर्स शुड बी द पार्ट ऑफ ट्रेड यूनियन आफ्टर दी रजिस्ट्रेशन. यानी कि अब जो है एक एम्प्लॉय भी जाके ट्रेड यूनियन रजिस्टर करा सकता है, बट उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उस यूनियन के कम से कम टोटल एम्प्लॉय जो है उसके 10% या 100 मेंबर होने जरूरी है. इफ देयर इज अ रजिस्टर्ड यूनियन इन द एस्टेब्लिशमेंट देन इट इज कंपल्सरी दैट देयर विल बी नेगोशिएटिंग काउंसिल और नेगोशिएटिंग यूनियन फॉर द नेगोशिएशन. राइट्स ऑफ ट्रेड यूनियन 1926, यानी कि राइट्स सेम है जो ट्रेड यूनियन 1926 के थे, बस बट केवल सेक्शन चेंज हो गए हैं. अब जो है सेक्शन 16 हो गया है, जो सेक्शन 18 होता था और उसमें होता था इम्यूनिटी फ्रॉम द सिविल सूट इन सर्टेन केसेस. ओके, अर्लियर इट्स कम अंडर द सेक्शन 18. नाउ सेक्शन 17 says the criminal conspiracy in furtherance of object of the trade union. Earlier
it comes under the section 17. Now section 18 says enforceability of agreement. Earlier it come to the section 19. Now we will discuss about the standing order. As per the section 28, now the applicability of standing order is changed from 100 employees to the 300 employees. It means कि पहले जो standing order की applicability थी वो उस organization में applicable था जहाँ पे 100 या 100 से ज्यादा employees थे, but अब इसे change कर दिया है जहाँ पे 300 या 300 से ज्यादा employee हो गए. इस act को applicable होते ही standing order की applicability का condition भी change हो जाएगी. As per the Standing Order 1946, the state government had the power to decrease the applicability of a standing order to the number of employees. But जैसे ही एक एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, IR एक्ट 2020 एप्लीकेबल हो जाएगा, तो स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर नहीं होगी कि वो एप्लीकेबिलिटी का जो क्राइटेरिया उसको कम कर सकें. The central government is required to make model of standing order relating to condition of service, other matters incidental thereto और connected therewith. यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट है और उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि एक मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर बनाने का. फोर्थ पॉइंट है कि अगर कोई एम्प्लॉयर वांट्स टू अडॉप्ट द मॉडल ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर, देन इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फॉर डीम्ड सर्टिफिकेट. डीम्ड सर्टिफिकेट लेने के लिए इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी जो कि इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयर देगा. एंड द एम्प्लॉयर नीड टू फॉरवर्ड द इंफॉर्मेशन टू द कंसर्न सर्टिफाइंग बॉडी. यानी कि एम्प्लॉयर, जब कोई एम्प्लॉयर डीम्ड मॉडल अप्लाई लेना चाहता है, यानी कि जो सेंट्रल ने स्टैंडिंग ऑर्डर का मॉडल बनाया है उसी को इंप्लीमेंट करना चाहता है, तो उसको जो है डीम्ड सर्टिफिकेट लेना होगा. उसके लिए एम्प्लॉयर को जो है इंफॉर्मेशन देनी होगी, जो सर्टिफाइंग बॉडी होती है उसको इंफॉर्मेशन देनी होगी इन ए प्रिस्क्राइब्ड मैनर में. Time limit to complete the disciplinary proceeding in case of suspension as per section 38 है. Investigation and inquiry should be completed within 90 days from the date of suspension. As earlier, there should not be provision to complete the process within the time limit. Notice for change the IR Act 2020. As per the section 40 and 41, notice for change are continue. यानी कि as per the section 40 41 जो है अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो नोटिस देना कंपलसरी है. दो कंडीशन में कंपलसरी नहीं है, इसको एक्सक्लूड कर दिया है. पहली कंडीशन है कि इन इमरजेंट सिचुएशन नो नोटिस इज रिक्वायर्ड, ओनली कंसल्टेशन इज कंपलसरी विद दी GRC. यानी कि जो ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी है उनके साथ कंसल्टेशन करना जरूरी है, नोटिस देना कंपलसरी नहीं है. इफ गवर्नमेंट मेड एनी ऑर्डर फॉर चेंज देन आल्सो नो नीड फॉर सबमिट एनी नोटिस. अब आता है रिजोल्यूशन फॉर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. मैकेनिज्म फॉर रिजोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है मेजर चेंजेस. मेजर चेंजेस क्या है कि अब जो है कोर्ट का जो प्रोसेस था वो खत्म ही कर दिया है. अब पहला क्या क्या होगा इसमें, एक तो होगा कॉन्सिलिएशन ऑफिसर होगा, दूसरा इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल होगा, तीसरा नेशनल ट्रिब्यूनल होगा. पहले एपेक्स कोर्ट, लेबर कोर्ट वगैरह होते थे, वो सब नहीं होगा. इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल नाउ हैव 2 मेंबर्स. पहले उसमें ए मेंबर होते थे इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में, अब 2 मेंबर होंगे. मेंबर कौन कौन होंगे उसके, एक जुडिशियल मेंबर होगा और एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होगा. नोट करने वाली बात है इसमें, एज पर दी सेक्शन 53/6 अनसेटल्ड मैटर कैन बी टेकन टू द इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल विद इन 90 days बाय द पार्टी फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द रिपोर्ट. यानी कि कोई अगर अनसेटल्ड मैटर है और उसकी रिपोर्ट जैसे ही मिलती है तो उसके विद इन 90 days के अंदर ही इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में जो है पार्टी जा सकती है. एज पर दी सेक्शन 62 और 63 contain the general prohibition on the strike and lockout. अब क्या क्या prohibitions है strike और lockout के. Concept related to the public related services on strike and lockout is no more exist in new act. Restrictions placed on public utility, यानी कि अगर कोई बस बंद होती है, जैसे कि भारत बंद बुला लिया किसी ने, तो बसें बंद है, ट्रांसपोर्टेशन बंद है, तो उन कंडीशन पे जो है यूटिलिटी सर्विस ऑन स्ट्राइक लॉकआउट इज नाउ एक्सटेंडेड टू ऑल द केसेस फॉर इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट and all union and workers. Notice should be given before going for strike of lockout. ये कंडीशन सेम है, केवल एक ही चेंज हुआ है, वो जो सेकंड पॉइंट में मेंशन है वो हम पढ़ेंगे देखेंगे अभी. बाकी कंडीशन सेम है. पहला पॉइंट है देयर शुड नॉट बी स्ट्राइक विद इन 14 days फ्रॉम द डेट ऑन विच नोटिस इज गिवन, सेम एज अर्लियर. जो चेंज है वो मेजर चेंज है, नोटिस शुड बी गिवन बिफोर 60 days. अर्लियर इट वाज 6 weeks,
while going on the strike or lockout. Now it's changed to the 60 days. बस ये मेजर चेंज हुआ है इसमें, बाकी सारी कंडीशन सेम है. बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द डेट मेंशन ऑन द नोटिस, वर्कर और यूनियन कैन नॉट गो ऑन द स्ट्राइक सेम एज अर्लियर. ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ conciliation proceeding or 7 days after the conclusion of conciliation proceeding, or during the pendency of arbitrary proceeding after the conclusion of arbitrary conclusion, वर्कर कैन गो फॉर द स्ट्राइक विद इन द 60 डेज. ये सारी कंडीशंस पहले है, केवल एक चेंज हुआ है नोटिस का, तो पहले 6 वीक्स था, उसको 60 डेज कर दिया गया है. अब चेंजेस इन ले ऑफ, रिट्रेचमेंट एंड द क्लोजर. इफ द एम्प्लॉयर वांट टू रीहायर within 1 year of such retrenchment, then the employer give the preference to the retrenched employees before the new hiring. इस पॉइंट का कहने का मतलब है कि जैसे कि सपोज करो रिसेंट क्या नाम है कि किसी कंपनी ने अपना प्रोडक्शन बंद किया और रिट्रेच किया, यानी कि एम्प्लॉयज को निकाला, 20 एम्प्लॉयज को निकाला, ओके, क्योंकि काम नहीं था उसके पास. बट विद इन 1 ईयर, यानी कि 1 साल के भीतर भीतर ही उस कंपनी को काम मिल जाता है और उसको मैन पावर बढ़ाने की जरूरत है अपना प्रोडक्शन करने के लिए. तो उसको क्या कंडीशन है, उस एम्प्लॉयर को पहले अपने जो एम्प्लॉयज थे, यानी कि एक्स एम्प्लॉयज थे जिनको उसने रिट्रेच किया था, उनसे कांटेक्ट करना होगा, उनको प्रेफरेंस देनी होगी रिहायर करने के लिए इंस्टेड ऑफ न्यू हायरिंग. यानी कि पहले उनसे कंसर्न लेना होगा कि भाई आप काम करना चाहोगे नहीं चाहोगे. ये पॉइंट पहले भी मेंशन था, अभी भी सेम है. इफ अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट इज प्रोवाइडेड फॉर द मिनरल इंडस्ट्री, देन देयर इज नो प्रोविजन फॉर पेबल ऑफ कंपनसेशन, पहले भी था. बट अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट शुड बी विद इन 20 किलोमीटर. यानी कि अगर कोई मिनरल से रिलेटेड कंपनी है और वो अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट देती है तो कंपनसेशन के अंदर नहीं आता था. बट अब क्या कंडीशन अप्लाई कर दिया कि जो अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट है वो विद इन 20 किलोमीटर के रेडियस में ही होना चाहिए. ये केवल 2 चेंजेज हुए हैं जो चैप्टर 5 एज पर द इंडस्ट्रियल आईडी एक्ट, जो अब चैप्टर 9 हो गया उसके अकॉर्डिंग, बाकी सारे कंडीशन सेम है. 3 चेंजेज हुए हैं चैप्टर 5 एज पर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, जो कि अब चैप्टर 10 हो गया है आईआर कोड के अकॉर्डिंग. तो वो 3 चेंजेज ये है. If any organization having 300 or more employees, then there is a special provision for layoff, retrenchment or closure. Even appropriate government have the right to increase the applicability. Second हुआ है seasonal establishment are kept out from this provision, यानी कि जो seasonal establishment है उनको बाहर रखा गया है इस provision से, closure का जो provision है. और state government को ये right नहीं है कि इस applicability को उन पे enforce कर दे. As per the section 79/9 and the section 80/8, in case of retrenchment or closure, the appropriate government can change the compensation process or applicability. यानी कि जो appropriate government है वो उसका applicability और process को, compensation को change कर सकती है. अब एक नई टर्म आई है कोड, क्या नाम है इसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में, ये है वर्कर री स्किलिंग फंड. इसमें क्या है, एज पर दी सेक्शन 83 ऑफ आईआर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, दे शुड बी वर्कर री स्किलिंग फंड इज इंट्रोड्यूस. इसको इंट्रोड्यूस किया गया है री स्किलिंग फंड के तौर पे एक टर्म को. दिस फंड शुड बी सेटअप बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट होगी उसके द्वारा इसको सेटअप किया जाएगा. एम्प्लॉयर इज आल्सो रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट द फंड टू दिस स्कीम, यानी कि एम्प्लॉयर को भी कंट्रीब्यूट करना है इस स्कीम में. और कितना कंट्रीब्यूट करना है वो दिया गया है कि जो उस एम्प्लॉय की लास्ट वेजेज होगी उसकी 15 दिन की सैलरी देनी है. द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई विद द नंबर ऑफ डेज फॉर द कंट्रीब्यूशन, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस नंबर को चेंज भी कर सकती है, 15 से 20 भी कर सकती है, 5 दिन भी कर सकती है, 2 महीने भी कर सकती है. और देना कितना होगा कि ये नहीं कि अगर 10 लोगों को फायर कर दिया तो एक का ही देना होगा, नहीं, जितने भी एम्प्लॉय रिट्रेच होंगे 10 होंगे तो 10 लोगों की 15-15 दिन की सैलरी एम्प्लॉयर को देनी होगी. दिस फंड शुड बी क्रेडिटेड विद इन द 45 डे ऑफ रिट्रेचमेंट, यानी कि 45 दिन के भीतर ही, जैसे रिट्रेचमेंट होगा, रिट्रेचमेंट होने के 45 दिन के अंदर ही इस फंड को क्रेडिट करना है जो भी स्टेट गवर्नमेंट अपनी स्कीम चलाएगी उसके अंदर. सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नोटिफाई टू कंट्रीब्यूट द फंड विद सम अदर सोर्सेज एज वेल, यानी कि किसी और सोर्सेज के थ्रू कंट्रीब्यूट करने का, यानी कि कोई मंथली कर दे या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लिया, इस टाइप से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नोटिफाई कर सकती है इस फंड को मैनेज करने के लिए. अब है ऑफेंसेज एंड पेनल्टी. इसमें जो है थोड़ा चेंजेज हुआ है. पहले क्या था, हर ऑफेंस पे जेल का प्रावधान था. बट अब क्या है कि पहली बार अगर कोई क्या नाम है, पहली बार
जो पेनल्टी लगेगी वो केवल पेनल्टी लगेगी, पनिशमेंट नहीं होगा, यानी कि जेल नहीं होगी। पहले ऑफेंस पे केवल फाइनेंशियल पनिशमेंट है। तो वो क्या है कि जो पहला है वो है 10,000 से लेके 2 लाख तक की पेनल्टी लगेगी फॉर अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, यानी कोई अनफेयर लेबर प्रैक्टिस करता है तो फर्स्ट टाइम उस पर 10,000 से लेके 2 लाख तक का फाइन लग सकता है। अगर कोई एम्प्लॉयर रिपीट करता है अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस तो उस कंडीशन में हो जाएगा कि 50 लाख से लेके 50,000 से लेके 5 लाख तक का फाइन लग सकता है, और उसे 3 मंथ तक की जेल भी हो सकती है, और दोनों भी हो सकते हैं कि जेल भी हो 3 महीने की और जो फाइन है वो भी लगे। दूसरी कंडीशन है कि अगर कोई क्या नाम है कंट्रीब्यूशन है प्रोविजन रिलेटेड टू ऑन ले ऑफ रिट्रेचमेंट और क्लोजर से रिलेटेड है, तो उस कंडीशन में फर्स्ट टाइम जो होगा 1 लाख से लेके 10 लाख तक का फाइन लगेगा। बट अगर कोई एम्प्लॉयर रिपीट करता है इसको, इसी प्रोविजन को जो रिलेटेड है ले ऑफ रिट्रेचमेंट और क्लोजर से, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो फाइन है वो बढ़ जाएगा, मिनिमम 5 लाख से लेके मैक्सिमम 20 लाख तक हो जाएगा, और जो जेल है वो 6 महीने तक बढ़ जाएगी, 6 महीने तक की हो सकती है, या दोनों भी मिल सकता है, यानी कि जेल भी हो और फाइनेंशियल पनिशमेंट भी हो। नेक्स्ट है 4 कंडीशंस पे जो फाइन लगेगा, वो है राइट ऑफ वर्कर लेड ऑफ फॉर द कंपनसेशन, condition for the retrenchment of worker, compensation to worker in case of transfer of establishment, and compensation to worker in case of closing down of industry। तो उसमें जो है पहल अगर फर्स्ट टाइम कोई गलती करता है तो उस पर 50,000 से लेके 2 लाख तक का फाइन है, और अगर रिपीट करता है इन चारों में से कोई से भी एक पॉइंट नॉन कॉम्प्लाइंस करता है तो उसमें क्या है 6 महीने तक की जेल हो सकती है, और जो फाइनेंशियल पनिशमेंट है वो 1 लाख से लेके 5 लाख तक का हो सकता है, या दोनों चीजें हो सकती हैं कि 6 महीने की जेल भी हो जाए और फाइन भी लग जाए, 1 लाख लगो 2 लाख लगो 5 लगो, ये जो अथॉरिटी के ऊपर डिफाइन करेगा। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। इससे पहले हमने वीडियो शेयर की थी कोड ऑन वेजेज एक्ट 2019 से रिलेटेड, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाइए न्यू लेबर लॉज में, और उसमें जाके आप कोड ऑन वेजेस से रिलेटेड जो वीडियो थी उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि ये एक्ट अब कभी भी एप्लीकेबिलिटी में आ सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।